Hello everyone. How are you all? Hope you all are doing fine. आज का जो सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होने वाला है. So hope everyone is okay with that. So let me introduce myself. I am Dharan Shah. I am the founder of Healthwala Fitness. It's a health and wellness company, and most importantly, we are recognized by Government of India as a startup in the field of health and wellness. My education qualifications are I am a qualified company secretary and LLB and a commerce graduate. I was malnourished since childhood and had health issues throughout my teenage and couldn't find the right solution or advice in the market. Back in 2017, I decided to quit my corporate job and started pursuing health and wellness and became an internationally certified nutritionist and a certified fitness trainer and now has 5 plus years of experience in the fitness industry, and that's how Healthwala Fitness was born in 2019. I am born and brought up in Mumbai. I am the only child of my parents. My hobbies are playing cricket and weight training at the gym, and I have great interest in world politics. I love animals and I like to see them in the natural habitat. My mission is to make 10 lakh people independent on healthy eating and living a disease free and a medicine free life by 2027. Something no one knows about me is that I am quite an emotional guy and can go to any extent for my family, friends, and my country. So let's start the seminar with a video. कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है डरना तो बंदया रुकना तो बंदया राह पे चल बंदया डरना तो बंदया रुकना तो बंदया राह पे चल बंदया घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला Hi everyone, my name is Bijal and I recently attended the health webinar conducted by Healthwala Fitness. It was a pleasure attending the webinar. I have attended a couple of diet related sessions before. However, the information provided by Healthwala Fitness was seen to be very practical and easy to apply in our day-to-day life. पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये खाना नहीं वो खाना नहीं, लेकिन आपके टीम ने जो मेरे को गाइडेंस किया, आपने मैडम ने तो मेरे को वो चार्ट दे दिया था कि कब क्या खाना है, ऐसा खाना है. तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ नहीं कि ये डाइट करते समय भूखा रहना पड़ेगा. तो पूरा मैं हेल्दी खाना खाता था. आपने जो दिया था मेरे को, वो डाइट वाला प्लान दिया था, वो इतना मैंने एंजॉय किया. Good evening. I have lost around 10 kgs in 3 months. I started around in the month of Feb. I have lost 3 to 4 inches from my waist and 2 to 3 inches from my belly. And now my t-shirt size is from 4XL to 3XL. Hi, I'm Nilesh Sawant and I'm an architect by profession practicing in Mumbai. I'm 49 years old. I'm a health conscious and a gym person and into exercise and training since long. I was putting efforts, but the efforts were not in the right direction. One day, my gym trainer referred me to Mr. Dharan Shah for diet and nutrition to achieve desired results. I met Mr. Dharan Shah in March 2020 before lockdown. We discussed the concept of diet in details and understood its application and execution. I lost around 11 kgs in 2 months and total 13 kgs in 3 months time, and from 94 kilos today I am steady at 81 kilos.
and that was my fat loss from the doctor. Hi, I am Deep. I'm 23 years old and I live in Thane, and I am financial analyst in stock market. With my consistent effort and Healthwala Fitness along with me, I lost 30 kgs in 8 months. Now I have came down to 85 kgs from 115 kgs. Hi, I am Bijal Shah. I am 35. I live in Mumbai and I am into construction business. I was diagnosed with diabetes in August 2020 and my 3 months average sugar levels HbA1c were 9.3% and 220 mg, which was very high as compared to normal range of 5.5 to 6% and 90 to 140 mg respectively. I and my wife were literally shocked to see that. After completion of 3 months in mid-November 2020, I took out 3 months average sugar level report again to check the status of my sugar levels, and guess what? The average sugar levels dropped from 9.3% to 5.5 and 220 mg to 111 mg. The best part was I controlled my sugar levels without taking any medicines. Not only this, I lost 14.5 kg in 3 months time as well. Now I know what to eat and what not. Hello, I'm Vandana, 28 years old, and I'm from Mumbai and I'm a lawyer by profession. So I finally decided to check on that with my doctor, who asked me to get a blood test done. After my blood test, we found out that my thyroid level was at 10, which is double the normal range. A friend suggested that I refer Healthwala Fitness for a diet change. Personally, I was not quite sure about dieting because according to me, dieting always meant starving. However, Healthwala Fitness busted these myths for me by giving me not only a healthy diet but also a diet which was tasty and fulfilling at the same time. Hi, I am Keval Shah. I am 27. I live in Mumbai and I am an IT professional. Suddenly I came across this Healthwala Fitness on Facebook and I thought to give it a try. I was not sure whether I would be able to follow the diet again or not, since I am very foodie person, but after starting with the diet provided by Healthwala Fitness coach, I could adapt it within no time, and that too without compromising my taste buds. Hi, I'm Riya Sumitra. I'm 28 years old and I'm from Mumbai. When I started off with Healthwala Fitness, I was at 73.6 kgs and now after 3 months, I'm at 65 kgs. This journey wouldn't have been possible without Healthwala Fitness. So one of my friends had recommended me to them and I had witnessed her journey personally under their consultation. क्या सीखने वाले हैं? जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम आज सीखेंगे परमानेंट वेट लॉस। परमानेंट वेट लॉस, एक बार वेट लॉस करने के बाद कैसे उसको मेंटेन रखना है। समझो कोई 80 केजीज का है और वो 70 केजीज का हो गया हमारे प्रोग्राम के बाद, तो उसके बाद उसका वेट कैसे मेंटेन रखना है, वेट कैसे वापस इंक्रीज ना हो जाए। आपने काफी सारे लोगों को देखा रहेगा कि उन्होंने 10 किलो कम किया, फिर 10 किलो बढ़ गया, उसके ऊपर और 5 किलो बढ़ गया, और ये सिलसिला हमेशा जिंदगी भर चलता रहता है। दूसरा, डायबिटीज कैसे रिवर्स करते हैं, मेडिसिन कैसे स्टॉप करते हैं, मेडिसिन का रिप्लेसमेंट क्या है, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। थायराइड जैसे डायबिटीज रिवर्स करते हैं, वैसे ही हाइपोथायराइड कैसे रिवर्स करते हैं, कौन से ऑयल्स यूज करने चाहिए हमें किचन में, कौन से ऑयल्स यूज नहीं करने चाहिए, लेबल कैसे पढ़ना है, मेडिसिन कैसे बंद करनी है स्टेप बाय स्टेप, बैलेंस डाइट क्या होता है, आपके डाइट में कैसी कैसी आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए खाने की, 4 मैंडेटरी चेंजेस जो आपके डाइट में आपको करने हैं। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे, पानी कितना पीना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्ग डाइट, कितने सारे रॉन्ग डाइट है जो मार्केट में चल रहे हैं, वो किस तरह के डाइट होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स अगर आपको चेक करने हैं तो कौन से ब्लड रिपोर्ट्स है वो चेक करने चाहिए, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, रियल लाइफ केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लाइंट्स की, और एंड में हमारे हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा, हमारा ऑफर क्या है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ओके, राइट, 140 करोड़ नितिन, या 140 करोड़ हर्षा, राइट, 100 करोड़, नो, 150 करोड़, 170 करोड़, नो,
ओके, सो द राइट आंसर इज, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ है। अभी आप मुझे ये बताइए कि 140 करोड़ में से आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोगों का वजन ज्यादा है? हाउ मेनी पीपल आर ओवरवेट? हाँ, 50%, 30%, 90%, 20%, 35%? ओके, राइट, सो द राइट आंसर इज 70%। 18 साल के उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं उसमें से 70% लोग ओवरवेट है, और उसमें से भी 13% लोग ओबीज है, मतलब ओवरवेट से भी ज्यादा वेट है उनका। ओके, आप मुझे ये बात बताइए कि ये 140 करोड़ लोगों में से डायबिटीज के पेशेंट्स कितने हैं? एनी गेसेस? आप नंबर्स में भी बता सकते हैं, आप परसेंटेज में भी बता सकते हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 20%, 25%, 30%? ओके, सो द राइट आंसर इज 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज है, और बहुत सारे करोड़ों लोगों को प्री डायबिटीज है जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज आ चुकी है। तो ये जो नंबर है 10 करोड़ का, ये अगले कुछ सालों में डबल होने वाले हैं, अगले 5 से 10 सालों में भी ये डबल हो सकता है जिस तरह से हम जा रहे हैं। और क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे थायराइड के पेशेंट्स कितने हैं? ओके, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, राइट? सो हमारे पास जो डेटा है वो हिसाब से थायराइड के हमारे जो पेशेंट्स है वो 4 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज है इंडिया में। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें से 50 करोड़ लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है। ओके, उसी तरह हर साल 10 लाख नए कैंसर के केसेस आते हैं इंडिया में। 15% वुमन जिनका बेबी करने का जो पीरियड होता है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, 18 से 35 साल या 18 से 40 साल, इसमें से 15% वुमन को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है। इंडिया में सबसे बड़ा जो कॉज है डेथ का वो है हार्ट रिलेटेड डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, जो 24% है। मतलब 100 में से 24 लोगों की डेथ इंडिया में हार्ट रिलेटेड इश्यूज की वजह से हो रही है। एंड बाकी की जो डेथ हो रही है वो कैंसर, डायबिटीज, लंग डिजीज, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर एंड काफी सारे अदर हेल्थ इश्यूज की वजह से हो रही है। ओके, सो क्या ये नंबर शॉकिंग है या नहीं? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, राइट, यस 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 यस। ओके, सो आज मैं यहाँ पे क्यों हूं? मैं आज यहाँ पे आया हूं आपको एजुकेट करने, ताकि आप नेसेसरी प्रिकॉशन ले सके, नेसेसरी एक्शन ले सके, ताकि आप इन सभी कैटेगरीज में ना आए। एंड मैं आपको आज एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर ये सेमिनार आपने पूरा अटेंड किया, और ये सेमिनार में मैंने आपको जो चीजें बताई है, अगर वो आपने 100% इम्प्लीमेंट की, तो आपके 50% ऑफ हेल्थ इश्यूज ये सेमिनार अटेंड करके ही सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे या मेरे प्रोग्राम की या मेरी टीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इतना पावरफुल सेमिनार है, तो ये एंड तक इसे जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमें इतनी सारी बीमारियां हैं, तो इन बीमारी का कारण क्या है? डाइट और लाइफस्टाइल। ये जितनी भी बीमारी है वो है डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो आज हम आपका डाइट और लाइफस्टाइल ये दोनों फिक्स करेंगे। ओके, अब आते हैं हमारे खाने में। हमारे खाने में 3 मेन चीजें होती है: प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रोटीन में क्या आता है, फैट में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है। तो आइए जानते हैं। प्रोटीन्स में आता है, सबसे पहले आता है पनीर, जिसे हम कॉटेज चीज भी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें 100 ग्राम में से 20 ग्राम प्रोटीन आपको सिर्फ पनीर में से मिल जाता है। दूसरा आता है पल्सेस। दाल और पल्सेस जो है हमारी, उसमें प्रोटीन होता है। हमारे ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, अखरोट, वॉलनट, आलमंड्स, राइट, ये सब चीजों में, पिस्ता, ये सब चीजों में प्रोटीन होता है। मिल्क में प्रोटीन होता है, कर्ड में प्रोटीन होता है, बटर मिल्क में प्रोटीन होता है। जितने भी सीड्स है, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, अलग अलग टाइप के जितने भी सीड्स है,
उसमें प्रोटीन होता है। नट्स है, ग्राउंड नट्स है, इसमें प्रोटीन होता है। और अगर आप एगिटेरियन है, अगर आप एग खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन होता है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें भी प्रोटीन होता है। तो आपको इतना ही बस जानने की जरूरत है कि प्रोटीन में ये चीजें इंक्लूड होती हैं। अगली पॉइंट पर आते हैं जो कि है फैट्स। फैट्स में क्या होता है? घी, बटर, चीज, तेल। बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। घी, बटर, चीज, तेल, ये है प्योर फैट। ओके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन और फैट होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें सिर्फ फैट होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों होता है। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन में पनीर में प्रोटीन होता है तो पनीर में फैट भी होता है, विच इज गुड फैट्स। ओके। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी फैट होता है। मिल्क में तीनों होता है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कर्ड में भी तीनों होता है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड सेम विद बटर मिल्क। एग्स में प्रोटीन और फैट होता है। मीट में सिर्फ प्रोटीन होता है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ फैट। तो ये सब आपको जानने की जरूरत है। अब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में होता है पोहा, जो कि राइस से बनता है। उपमा, जो कि रवा से बनता है, जो व्हीट का पार्ट है। पराठा, जो हम व्हीट से बनाते हैं। पल्सेस, जैसे कि मैंने बताया, पल्सेस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है, पल्सेस में फैट नहीं होता है। बिस्किट में कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट होता है। मैदा, गेहूं, पाम ऑयल, शुगर। व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड, इसमें भी वही हाल है। व्हीट, मैदा, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, राइट। व्हीट और व्हीट की जो आटा है वो भी पूरा कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी हमारे ग्रेन्स है, ज्वार, बाजरा, नाचनी, ओट्स, गेहूं की रोटी, मैदा, व्हाइट राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रूट जूसेस कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है। फ्रूट में पानी होता है, फ्रूट शुगर होता है, और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और फाइबर होता है। वेजिटेबल्स, इसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर काफी होता है, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। ब्राउन राइस इज कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, बार्ली राइस कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। पिज्जा में होता है मैदा, विच इज अगेन कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। बर्गर अगेन कार्बोहाइड्रेट। फ्राइज पोटैटो से बनता है, अगेन कार्बोहाइड्रेट। वड़ा पाव जो पाव से बनता है, विच इज वेरी बैड, रिफाइंड फ्लावर, मैदे से बनता है, उसमें पाम ऑयल भी होता है। वड़ा पाव का जो वड़ा है वो रिफाइंड ऑयल में तला जाता है, वो भी बहुत खराब है। सेम विथ समोसा पाव, सैंडविच, मोमोज। शुगर इज अगेन प्योर कार्बोहाइड्रेट। जैगरी जो गुड़ है वो भी प्योर कार्बोहाइड्रेट है। एंड फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, काफी सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होती है। अभी मुझे आप लोगों से पूछना है कि आज आप लोगों ने क्या क्या खाया। ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, बताइए। सो ब्रेकफास्ट में, ओके, रिकिन सेज पोहा, नितिन सेज उपमा, रुशिका सेज पराठा, ओके, हर्षा सेज चाय एंड बनाना, बिस्किट, व्हाइट ब्रेड का टोस्ट, ब्राउन ब्रेड का टोस्ट, ओके ओके। एंड लंच में इट इज व्हीट, रोटी, राइस, दाल, ओके, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर क्विक रिप्लाई। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वी हैव कवर्ड के प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है। तो आप लोगों ने अभी जो मेंशन किया है, अगर मैं वो खाने का परसेंटेज निकालूं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो आता है 80 to 90% आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, 5 से 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, 5 से 10 ग्राम आप फैट खा रहे हैं। एम आई करेक्ट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस 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 यस, ओके, फैंटास्टिक। तो हमारे खाने में 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 4 प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो जैसे कि मैंने बताया 50% ऑफ द हेल्थ इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किया आपके डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स जब हम इतनी मात्रा में खाते हैं 80 to 90%, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है, वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है और उससे ग्लूकोज बनता है,
और ये जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है चर्बी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो थर्ड इमेज, जहां पे येलो येलो चीजें आप देख रहे हो पेट के आसपास, वो फैट है। फैट इज येलो इन कलर। तो आपका जो फैट है बॉडी में वो इस तरह से बनता है। जब आपके खाने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस तरह से फैट बनता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स। ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वीट और वीट प्रोडक्ट्स जितने भी है, तो वीट के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? वीट, वीट फ्लावर, वीट रोटी, रवा, रवा से बना हुआ उपमा, मैदा, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, एंड इसके अलावा बार्ली और राई में भी ग्लूटन होता है। तो वीट और वीट में क्या प्रॉब्लम है? ग्लूटन। ग्लूटन एक प्रोटीन है। अब ये क्या करता है हमारे बॉडी में? आप एक सेकेंड इमेज देख रहे हैं, ये हमारे पेट का इमेज है, जिसमें आपको बड़े पिंक साइज में आपको लिवर दिख रहा है और उसके बीच में आपको एक येलो ग्लैंड दिख रहा है, वो उसे कहते हैं हम पैनक्रियास। ये पैनक्रियास का काम क्या है? ये कुछ सेल्स बनाते हैं जिसका काम है बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करना। अब क्या होता है जब हम इतना ग्लूटन खाते हैं, तो ये ग्लूटन क्या करता है, ये जो पैनक्रियास के सेल्स है उसको डैमेज कर देता है। एंड जब ये सेल्स ही डैमेज हो जाएंगे तो बॉडी में ग्लूकोज रेगुलेट बरोबर से होगा नहीं, और ये ग्लूकोज हो जाता है फैट में कन्वर्ट, और इससे आपको होती है डायबिटीज, क्योंकि ग्लूकोज भी ज्यादातर ब्लड में रह जाता है, एंड इससे आपको डायबिटीज भी होती है। सो इसका साइंटिफिक प्रूफ ये है। ये एक आर्टिकल है जो रिसर्च किया गया था, जिसमें बताया गया है, अगर आप हाइलाइटेड सेक्शन में देखेंगे, ग्लूटन इनटेक माइट अफेक्ट टाइप 1 डायबिटीज डेवलपमेंट। सो मेरी एक खासियत ये है कि मैं प्रूफ के बिना बात नहीं करता। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप एकदम सही और सच्ची बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप ग्लूटन खा रहे हैं तो ग्लूटन से क्या होता है, आपको टाइप 1 डायबिटीज डेवलपमेंट का चांसेस होता है। और उसी के नीचे आप देखेंगे ग्लूटन फ्री डाइट में प्रिजर्व बीटा सेल फंक्शन। इसका मतलब क्या कि अगर आप एक ग्लूटन फ्री डाइट खाएंगे तो ये जो पैनक्रियाज है इसके सेल्स बच जाएंगे, और अगर आपके इसके सेल्स बच गए तो ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही आपको डायबिटीज होगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शुगर। शुगर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये प्रोसेस होती है, ये शुगर केन से बनती है, लेकिन प्रोसेस होने के टाइम काफी सारे केमिकल्स जाते हैं, जिससे ये क्रिस्टल फॉर्म में बन जाती है, इसकी कोटिंग होती है। ये बहुत ही ज्यादा खराब है, ये आपकी एज को बढ़ाती है, आप फास्टर एज करते हैं, ये आपकी स्किन में रिंकल्स लेके आती है, आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल्स कम कर देती है, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है डायबिटीज के साथ साथ, और आपका वजन तो बढ़ेगा ही। तो शुगर इतनी खराब है। कौन सी चीजों को कौन सी चीजों से रिप्लेस करना है उस पर मैं जल्द ही आ रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिफाइंड ऑयल। अगर आपने आपके किचन में जो ऑयल का डब्बा है उसमें अगर आपने देखा रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। ये जो ऑयल है उसे फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है 200 से 600 डिग्री टेम्परेचर पे, और अगर ऑयल ऑलरेडी गर्म होके आया है तो वो खराब हो जाता है। उसे हम वापस घर पे गर्म करते हैं रिपीटेडली तो वो और खराब हो जाता है। फैक्ट्री में हेक्सेन नाम का एक केमिकल है, वो डाला जाता है ऑयल में। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो खाने के लिए नहीं बना है। इससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन होने से हमें आगे जाके कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। वुमन को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है और हार्ट डिजीज होने के चांसेस है। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे कि बताया था कि 24% ऑफ डेथ, हर 100 में से 24 लोग हार्ट इश्यूज की वजह से मर रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रिफाइंड ऑयल ने प्ले किया है। और अगर आपको इन्फ्लेमेशन चेक करने हैं तो होमोसिस्टिन एंड सीआरपी, ये 2 ब्लड रिपोर्ट होते हैं जिससे आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में पता चलेगा। अगले स्लाइड पे आते हैं। अभी हमें क्या चेंजेस करने हैं? हमने देखा कि हमें 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, जो हमारा पहला प्रॉब्लम था। ये है पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो
80 to 90 कार्बोहाइड्रेट्स के बदले हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस डाइट खाना है जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर भी हो। तो हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम कर देंगे। अगर आप इतना बड़ा बाउल पोहा खा रहे हैं तो उसे आधा कर देना है, और ये जो बाकी का जो आधा पार्ट है उसे आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट के साथ उसे खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट पे क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट पे प्रोटीन और फैट होता है, पोहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पोहा आप किस में बनाएंगे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा आगे। तो इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर आप प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस वे में खाएंगे तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, आपका बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर लेवल्स नीचे आएंगे, ब्लड प्रेशर है तो वो भी नीचे आ जाएगा। इसी तरह पोहा के साथ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो पोहा के साथ साथ आप चीज का एक क्यूब भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीज दूध से बना है, चीज में प्रोटीन और फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर आप रवा उपमा खा रहे हैं तो रवा उपमा के बदले आप ओट्स उपमा खा सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, टेस्ट में, टेक्सचर में कुछ भी फर्क नहीं है। इसके साथ साथ आप एक मुट्ठी अगेन ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं और एक चीज क्यूब भी खा सकते हैं। उसी तरह अगर आप एक राइस का डोसा खा रहे हैं, उसके बदले आप मिक्स दाल का डोसा खाइए। उसके साथ आप बटर और चीज भी खा सकते हैं और सांभर और चटनी भी खा सकते हैं। यस, बटर और चीज से आपका वेट गेन नहीं होता है। ओके। फोर्थ इज व्हीट रोटी और सब्जी। अगर आप व्हीट रोटी और सब्जी खा रहे हैं तो व्हीट रोटी को आपको रिप्लेस करना है बाजरा रोटी से, ज्वार रोटी से, नाचनी से, ओट से और बाकी टाइप के जो मिलेट्स है आप उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ आपको सब्जी लेनी है, उसके साथ आपको कोई प्रोटीन का सोर्स लेना है जैसे कि पनीर, पल्सेस, कर्ड, एग्स या तो नॉन वेज। ओके। अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बैलेंस डाइट बना रहे हैं। ओके। फिफ्थ इज दाल एंड राइस। दाल एंड राइस को अगर हम अगर सिर्फ दाल एंड राइस खाते हैं तो इससे वेट गेन होने के चांसेस है, शुगर लेवल स्पाइक होंगे। तो हम क्या करेंगे, राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, उसमें दाल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे जो कि गुड फैट है। उसके साथ एक प्रोटीन का सोर्स लेंगे विच इज अगेन पनीर, पल्सेस, कर्ड, एग्स और नॉनवेज, और इसके साथ हम लेंगे एक प्लेट सैलड जो कि हमारा फाइबर का पार्ट कवर करेगा। तो ये थे कुछ हेल्दी चेंजेस। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था वो था व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। उसके बदले हमें रिप्लेस करना है बाजरा, ज्वार, नाचनी, ओट्स, मिलेट्स, आलमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर। इन फ्लावर से आप रोटी बना सकते हैं। अभी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग ये रोटी बनाने की जब ट्राई करते हैं तो बहुत कड़क बनती है। तो इसे बनाने का एक तरीका है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो के द्वारा। आई विल प्ले द वीडियो। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था शुगर को हमें किन चीजों से रिप्लेस करना है आइए देखते हैं। शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 100 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ये कि अगर आपके बॉडी में कोई खाना जा रहा है वो कितनी स्पीड से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 100 है, जो कि बहुत ही खतरनाक है आपके हेल्थ के लिए। तो शुगर से अच्छा क्या है, जैगरी जो कि गन्ने से बनता है, शुगर केन से, लेकिन उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा कम नहीं है, वो सिर्फ 16 पॉइंट्स कम है, वो है विच इज 84।
लेकिन जैगरी में ऑफ कोर्स काफी सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन, जस्ट लाइक आयरन, ओके। बट जैगरी से भी बेटर है पाम जैगरी, जो कि पाम ट्री से बनती है, और उसका जो शुगर लेवल है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो है सिर्फ 34। तो मैं पर्सनली पाम जैगरी यूज करता हूं। और जो चौथा ऑप्शन है वो है स्टीविया, जो कि अगर 100% नेचुरल स्टीविया है, स्टीविया एक प्लांट होता है जो शुगर की तरह टेस्ट करता है। अगर आपको स्टीविया के प्योर लीव्स मिलते हैं तो आपको वो यूज करने हैं, लेकिन अगर स्टीविया के लीव्स नहीं मिले तो स्टीविया का पाउडर मिलता है। अगर वो 100% प्योर स्टीविया पाउडर है तो वो आप उसे यूज कर सकते हैं। सो दिस, बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है शुगर और शुगर के रिप्लेसमेंट के बारे में। अगला जो चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था रिफाइंड ऑयल। उसका सॉल्यूशन इस स्क्रीन पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑयल यूज करना है। अगर आपको कुकिंग करना है, सब्जी बनानी है, कुछ डीप फ्राई करना है, भजिए तलने हैं, आप सबसे पहले घी में बना सकते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब ही है कि उसे गर्म नहीं किया जाता है, इसलिए कहते हैं उसे कोल्ड प्रेस्ड। सो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल आप यूज कर सकते हैं, विच इज कोकोनट ऑयल। अगेन वो भी आपको पसंद नहीं आता तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हैं। इस खाने के ऑयल से, कोल्ड प्रेस्ड के कोकोनट ऑयल से मैं बॉडी मसाजेस भी लेता हूँ। मैं जो कुकिंग और फ्राइंग के लिए जो ऑयल पर्सनली यूज करता हूँ वो है कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल। आप कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल एंड सीसम ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और खाना बन जाने के बाद उसमें अगर आपको कोई हेल्दी ऑयल डालना है, सैलड बनाने के बाद उसके ऊपर आपको कोई हेल्दी ऑयल डालना है, तो वो है कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप कुकिंग के लिए या डीप फ्राइंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हीट के कांटेक्ट में आते ही बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ऑलिव ऑयल आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ऑयल के बारे में भी आपको बस इतने ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत आपको जानने की नहीं है। अगला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पानी पानी कितना पीना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ बोलते हैं 3 लीटर, कुछ लोग बोलते हैं 15-20 गिलास पीना चाहिए। तो आज मैं आपका जो पानी का डाउट है वो सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। सो पानी कितना पीना चाहिए वो केस टू केस और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आप एक क्रिकेटर है, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको शायद 4 लीटर भी कम पड़ेंगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपका बैठे बैठे जॉब है, आपका ट्रैवलिंग नहीं है, घर बैठे पूरा दिन जॉब कर रहे हैं, ज्यादा बात भी नहीं कर रहे आप, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट शायद 2 ही लीटर हो सकती है। अगर मैं अभी सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूं, इतना मैं बोल रहा हूं, तो पानी की रिक्वायरमेंट मेरी नॉर्मल डे से थोड़ी ज्यादा होगी। और आपको प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करनी है, आप ऐसे स्टील की बोतल यूज कर सकते हैं, या तो आप कॉपर बोतल यूज कर सकते हैं। 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल में 2 लाख माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस पाए गए हैं। प्लास्टिक के ये जो माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे पीसेस हैं वो इंसान के ब्रेन में पाए गए हैं, ह्यूमन के टेस्टिस में, मेन के टेस्टिकल्स में भी पाए गए हैं। तो इतना खतरनाक है प्लास्टिक के बोतल से पानी पीना। आप सुबह ही घर से निकलेंगे तो अगर आप पूरा दिन बाहर है तो 2 लीटर बोतल कैरी कीजिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आधा से 1 लीटर बोतल, स्टील की बोतल या कॉपर बोतल या ग्लास बोतल कैरी कीजिए। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, कभी पीना है। पहली बात यह है कि अगर आपको प्यास लग रही है, ये तो एक क्लियर साइन है कि आपको पानी पीने की जरूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये है कि अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलो हो गया है तो वो बॉडी में डिहाइड्रेशन का साइन है, पानी की कमी का साइन है, तो आपको पानी पीने की जरूरत है। अगर कोई चक्कर आके गिर जाता है तो उसे नमक वाला पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करता है, बॉडी में जहां जहां पे पानी की कमी है वहां पे वो पानी पहुंचा देता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉल लेते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट और शुगर का मिक्स होता है। तो सॉल्ट इज गुड फॉर यू इन लिमिटेड क्वांटिटीज। नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कितने सारे गलत तरह के डाइट है, कितने तरह से कितने सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को गलत डाइट के प्लान्स दिए गए हैं, उससे क्या होता है उसे हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो पहला जो डाइट है वो है सैलड्स एंड फ्रूट्स डाइट। सैलड्स एंड फ्रूट्स डाइट खाने से आपको ना ही प्रोटीन मिलेगा ना ही फैट मिलेगा,
आपके बॉडी को प्रोटीन और फैट की जरूरत है, आपके स्किन को, आपके बाल को, आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटीन की जरूरत है, आपके ब्रेन को फैट की जरूरत है। तो सैलेड्स एंड फ्रूट्स डाइट जो करते हैं उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो ये बहुत ही ज्यादा खराब डाइट है। और जितने भी बाहर के जो खराब डाइट आपको दिए गए हैं उससे आपको टेम्पररी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन जब आप ये नॉर्मल, ये जो बाहर के खराब डाइट है वो आप छोड़ेंगे और आप नॉर्मल खाना चालू करेंगे तो आपने जो 5-10 किलो कम किया है वो तो बढ़ेगा ही, उसी के साथ साथ आपका और 5-10 किलो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप सैलड्स और फ्रूट्स वाला डाइट खाते हैं तो प्रोटीन की कमी की वजह से आपके बॉडी में मसल लॉस हो जाता है, और मसल अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म और ड्रॉप हो जाता है, और आप थोड़ा सा भी खाओगे तो आपका वेट गेन होने लगता है। उसी तरह कुछ डाइट में ऐसा कहा गया है कि आपको 6 से 8 बार खाना खाना है। अगर आप 6 से 8 बार खाना खाओगे दिन में तो आप काम कभी करोगे? 6 से 8 बार खाना खाओगे तो बॉडी को 6 से 8 बार सिग्नल जाएगा, ब्रेन जो है वो बॉडी को सिग्नल देगा कि खाना आ गया है, तो वो आपकी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है जो जरूरत नहीं है। आपका पैनक्रियास है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसके इंसुलिन लेवल्स है वो स्पाइक होंगे और आपको डायबिटीज होने के भी चांसेस है। पानी कितना पीना चाहिए वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। घी, बटर, चीज, तेल बैड, खराब है। काफी सारे डाइटिशियंस है वो घी कंप्लीटली बंद करवा देते हैं। आपका जो ब्रेन है वो 70% फैट है, तो वो आपको खाने की जरूरत है, वो गुड फैट है। पानी खाने से पहले पानी पियो और बटर मिल्क पियो, ये भी एक गलत तरीके का एडवाइस दिया गया है मार्केट में। इससे क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपका पेट भरा हुआ रहेगा, बट ये गलत तरीका है। ब्राउन ब्रेड हेल्दी है, ये भी बोला गया है मार्केट में। ब्राउन ब्रेड बिल्कुल हेल्दी नहीं है। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई फर्क नहीं है। ब्राउन ब्रेड में कलर्स डाले जाते हैं, हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो जरा भी हेल्दी नहीं है। इवन मल्टीग्रेन ब्रेड भी हेल्दी नहीं है। आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स में व्हीट फ्लावर, सोयाबीन फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर जो कि मैदा है, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सब अगर आपको मिलेगा तो वो बहुत ही आपके लिए खराब है। तो कोई भी लेबल, कोई भी फूड प्रोडक्ट आप लोगे उसमें ये चीजें आपको चेक करनी है। फिर एक टाइप का डाइट है जिसमें कहते हैं सर्वाइव ऑन जूसेस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस पे सर्वाइव कीजिए। अगेन वही प्रोटीन और फैट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर राइस स्टॉप कर दीजिए। राइस मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टॉप कर दीजिए, लेकिन उसे उस तरह से खाइए जिस तरह से मैंने बताया था। कैसे? राइस, दाल, घी, प्रोटीन सोर्स एंड सैलड, इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। लेकिन हाँ, राइस की क्वांटिटी डेफिनेटली कम कर दीजिए। और एक डाइट है, एक डॉक्टर है मार्केट में, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो कहते हैं कि दिन में 2 बार खाइए और 55 मिनट के लिए खाइए। ईट 2 टाइम्स अ डे फॉर 55 मिनट्स। ओके, लेकिन उन्होंने गाइड नहीं किया है कि ये 55 मिनट्स में हमें क्या खाना है। 55 मिनट्स में आप एक बड़ा प्लेट भर के राइस, वड़ा पाव और सैंडविच नहीं खा सकते। इसमें भी आपको बैलेंस डाइट खाने की जरूरत है। अगर आप 2 टाइम्स खाना खा रहे हैं 55 मिनट्स अ डे, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन एक डेफिनेशन होना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और लास्ट, सबसे बड़ी गलत बात जो मार्केट में बताई गई है वो है कि मेडिसिन खाने से आपकी डिजीज क्योर होती है। अगर मेडिसिन खाने से डिजीज क्योर होती है तो अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों 10 करोड़ लोग हैं डायबिटिक? क्यों 4 करोड़ लोग हैं थायराइड? क्यों करोड़ों लोगों को पीसीओडी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? क्यों करोड़ों लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है? तो मेडिसिन खाने से डिजीज क्योर नहीं हो सकती। मेडिसिन खाली डिजीज के जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस करती है, और वो एक टेम्पररी नुस्खा है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा, और जो रूट कॉज है वो है आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आप कितने हैप्पी हो लाइफ में, आप कैसे चीजों को मैनेज करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है। अभी ये जो हमने खराब टाइप के डाइट डिस्कस किए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपका वेट तो कम होगा, लेकिन वेट फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आपके फेस की, आपके पेट की, आपके ओवरऑल बॉडी की। आपकी स्किन डल लगने लगेगी, आपके बॉडी में से विटामिन्स और मिनरल्स कम हो जाएंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको हेयर फॉल होने लगेंगे, आपको थकान होने लगेगी, आपको बॉडी पेन होने लगेगा। और ये सब सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स देते हैं। इस टाइप के जो डाइट है वो सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स देते हैं। हमें ऐसा कुछ चाहिए जो कि हम लाइफ टाइम सस्टेन कर सके।
इसलिए हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ 3 से 6 महीना जुड़े रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। प्रोग्राम के 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं थैंक यू धरन जी, आपने हमें जो सिखाया है वो हम आज भी इजीली फॉलो कर पा रहे हैं और हमारा वेट आज भी मेंटेन्ड है। अगले स्लाइड पे आते हैं, विच इज परमानेंट वेट लॉस कैसे करना है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा परमानेंट वेट लॉस कैसे करना है। तो ये सब जो हमने चेंजेस किए वो तो हमें करने ही है, साथ में हमें एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, ब्रीदिंग करना है, टाइम पे सोना है, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंपॉर्टेंट चेंजेस को एडेप्ट करने के बाद आपको कैलोरी काउंटिंग भी सीखना है कि हमारे बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही है। क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरी, आपने 1500 कैलोरी खा ली और आपने वर्कआउट नहीं किया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इवन तो आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो वेट लॉस नहीं होगा। तो वेट लॉस करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलोरीज कम करना पड़ेगा, वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा और एक बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा जिसमें आपको भूखा रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम परमानेंट वेट लॉस कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको मेरा ऑफर बताऊंगा जहां पे 15 से 20 चीजें ऐसी है जो हम देने वाले हैं, और वो जब भी आपको मिल जाएगी आप उन चीजों को समझ जाओगे तो आपका डेफिनेटली परमानेंट वेट लॉस होगा। अब आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज पे। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये हमारे क्लाइंट है मिस्टर दीप, जिन्होंने 30 केजीज लूज किया 8 मंथ्स में। आप चेंजेस देख सकते हैं कैसे उनका स्किन टोन चेंज हो गया है, उनका वेट पूरा चेंज हो गया है, उनका फेस भी पूरा चेंज हो गया है, काफी फिटिंग क्लोथ्स काफी फिट हो रहे हैं उनको। एट द सेम टाइम राइट साइड में आप नीलेश सावंत जी को देख रहे हैं। ही इज 50 years old, ही लॉस्ट 13 kgs in 3 months। देन लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं मिस अमृता है, उन्होंने 10 केजीज लूज किया 5 मंथ्स में एंड वो आज भी मेंटेन है। राइट साइड में मिस हर्षा है जिन्होंने 11 केजीज लूज किया। आप चेंज देख सकते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म किया है हमने इनको। और ये एक मिडल एज और ओल्ड एज दोनों दोनों के आपको मैंने एग्जांपल दिए ताकि आप रिलेट कर सके आपके साथ और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। अब आते हैं हम सेकेंड मेन टॉपिक, हाउ टू रिवर्स डायबिटीज। सो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल्स बॉडी में ब्लड में बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज लेवल्स। तो इसमें क्या होता है, दो सिनेरियो है। एक तो आपके सेल्स डैमेज हो गए, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, आपके पेनक्रियास के सेल्स डैमेज हो गए हैं। और दूसरा आपके जो सेल्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेट में चले गए हैं। इसका मतलब क्या कि ग्लूकोज जा रहा है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं पहुंच रहा है, ग्लूकोज ट्रैवल कर रहा है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं पहुंचा, जिसे कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये जो सिनेरियो है इसे हम कहते हैं डायबिटीज, और ये हमारे ब्लड रिपोर्ट से ही पता चलता है। डायबिटीज में 3 टाइप होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3C। टाइप 1 में इंसुलिन बॉडी बनाना बंद कर देती है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज है या नहीं, आपको टाइप 2 डायबिटीज है ये पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। अगर ये सी पेप्टाइड टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये काफी सारे पेशेंट्स को कराया नहीं गया है, डॉक्टर्स कराते ही नहीं है और फिर भी उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस दे देते हैं। सो दिस इज नॉट गुड। टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता लेकिन बहुत ही अच्छे से मैनेज हो सकता है। पेशेंट की जो लाइफ स्पेन है उसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके जो सिम्टम्स है उसे हम कम कर सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम इंप्रूव डेफिनेटली कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपके बॉडी इंसुलिन बना रही है शुगर को रेगुलेट करने के, लेकिन ठीक से नहीं बना रही है, कम बना रही है। तो ये जो केस है इसमें इंप्रूवमेंट के सबसे ज्यादा चांसेस है और इसमें रिवर्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। टाइप 3C डायबिटीज ऐसी डायबिटीज है जो किसी को भी नहीं पता। इसमें क्या होता है कि आपके जो पेनक्रियास है वो इटसेल्फ डैमेज हो जाते हैं, सेल्स तो डैमेज हो ही जाते हैं, और पेनक्रियास कुछ एंजाइम्स बनाते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी टाइप 3C डायबिटीज में एंजाइम्स बन नहीं पाते। तो टाइप 3C डायबिटीज एंड टाइप 1 डायबिटीज ये दोनों सिर्फ मैनेज हो सकते हैं। ओके, एंड टाइप 2 डायबिटीज में काफी चांसेस है रिवर्सल के। अगर आप 10 गोली खा रहे हैं तो 5 गोली पे आ जाएंगे, अगर आप 5 गोली खा रहे हैं तो 2 गोली पे आ जाएंगे, अगर आप 2 गोली खा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी गोली बंद भी हो सकती है। राइट, नेक्स्ट, ये कुछ सिम्टम्स है डायबिटीज के। बहुत ज्यादा सुसु आना, प्यास लगना, वजन सडनली कम हो जाना, भूख लगना, विजन आपकी कमजोर हो जाती है, आपके हाथ और पैरों में झंझनाहट होने लगती है, आपको थकान महसूस होने लगती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है,
पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको जो घाव है वो ठीक से नहीं भरते हैं, आपको आलसपन आने लगता है, आपको नींद आने लगती है पूरा दिन, आपकी किडनी के जो क्रिएटिन लेवल्स है, जो कचरा किडनी बाहर फेंकती है वो ठीक से फेंक नहीं पाती है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स है डायबिटीज के। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। ये मेटफॉर्मिन का काम ये है कि वो शुगर लेवल्स को नीचे लाने में मदद करती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है पिंक बैकग्राउंड में जो हमने हाईलाइट किया है, उसमें आइए उसे पढ़ते हैं। मेटफॉर्मिन मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन मतलब किडनी फंक्शन, रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल फंक्शन इन पेशेंट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज एंड मॉडरेट क्रोनिक किडनी डिजीज। इसका मतलब क्या कि मेटफॉर्मिन जो लोग खा रहे हैं उसका असर किडनी पे पड़ सकता है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज है। तो डायबिटीज जैसे कि मैंने बोला था, मेडिसिन है वो क्योर नहीं करती है, वो खाली सिम्टम्स को सप्रेस करती है और उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे बता रहा हूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मेटफॉर्मिन के बदले हम एक सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं अल्फा लिपोइक एसिड। मेटफॉर्मिन एक गोली है, एक मेडिसिन है। अल्फा लिपोइक एसिड एक सप्लीमेंट है। जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, आयरन, ये विटामिन और मिनरल है, वैसे ही अल्फा लिपोइक एसिड ये एक सप्लीमेंट है। तो ये क्या करता है? अल्फा लिपोइक एसिड आपके इंसुलिन मिमिक का काम करता है। लेकिन इसका मतलब क्या? पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन बनाता है जो शुगर रेगुलेट करता है। अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है? वही इंसुलिन का काम अल्फा लिपोइक एसिड कर देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंसुलिन मिमिकर। तो ये मेरे हर डायबिटिक पेशेंट को मैं ये चीज देता हूं। ये एक लाइफ साइकिल है डायबिटिक पेशेंट की। एक डायबिटिक पेशेंट की जिंदगी कैसे होती है? जब भी वो यंग होता है या 30s या 40s में होता है तो उसके डायबिटीज डिटेक्ट होती है। उसकी शुरुआत होती है 1 से 2 गोली से। उसके बाद उसके शुगर लेवल्स और बढ़ जाते हैं कुछ टाइम बाद, फिर उसकी गोलियां हो जाती है 3 से 4। फिर शुगर लेवल और बढ़ जाते हैं कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, फिर गोलियां हो जाती है 5 से 6। फिर आने लगते हैं हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज, ब्लड प्रेशर, विजन, आंखों की जो नजर है वो कमजोर हो जाती है, लेग पेन होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, और कुछ केसेस में शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। हार्ट पे असर हो जाता है, आपके जो घाव है वो भरते नहीं है, कुछ लोगों के हाथ और पैर भी काटने पड़े हैं। तो इतना ज्यादा खतरनाक है एक डायबिटिक पेशेंट का जिंदगी। अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप एक ही गोली खा रहे हैं तो एक ही गोली खा रहे हैं, ये सब इतने इश्यूज नहीं है, तो ये राइट टाइम है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसे रिवर्स करें और अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। ये कुछ केसेस हैं हमारे डायबिटीज के क्लाइंट के। ये हमारे क्लाइंट है मिस्टर बीजल। इन्होंने वेट लॉस किया 14.5 kgs इन 3 months, एंड इनका जो HbA1c लेवल्स है, जो डायबिटीज का 3 months का एवरेज लेवल्स बताता है, वो आ गया है 9.3 से 5.5, जो 5.5 वो नॉर्मल रेंज है यहाँ। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लाइंट है इनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था और ये हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए, तो इनको मेडिसिन ही स्टार्ट नहीं करनी पड़ी और 3 महीने में ही इनका डायबिटीज रिवर्स हो गया। और मैं हर एक चीज जैसे कि मैंने बोला कि मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो ये उनका ब्लड रिपोर्ट है। इनका HbA1c लेवल आप यहाँ पे देख रहे हैं 9.3% ऑन 26 और 17 अगस्त 2020, जो कि कम हो गया है टू 5.5 ऑन 21 नवंबर। ओके, एंड नाउ ही इज लिविंग अ डिजीज फ्री एंड अ मेडिसिन फ्री लाइफ। नेक्स्ट केस इज ऑफ मिस कुसुम गाला। इनका HbA1c 11.2 से 6.4 हो गया है 4 महीने में। इनका भी ये रहा ब्लड रिपोर्ट HbA1c 11.2 to 6.4 in 4 months, and she is also now medicine free and disease free. मिस्टर रणधीर 8 साल का इनका डायबिटीज था जो कि 3 महीने में ही कम हो गया, खत्म हो गया। ये एक ही मेडिसिन खा रहे थे, वो भी हमने बंद कर दी।
इनका HbA1c 5.4 हो गया, पहले था 6.3, इसके पहले तो 8 9 10 जाके आया, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन 6.3 से भी हमने इसे कर दिखाया है 5.4। आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट्स है, सो हम रिपोर्ट्स के बिना बात नहीं करते। मिस प्रेमिला सावला, इनका HbA1c आप देख रहे हैं 13.8, जो कि हो गया है 6.8 in 6 months, and she is also off the medicines and living a disease free and a medicine free life। ये एक केस है हमारे क्लाइंट का, मिस्टर ललित। ये हमारे 2 साल पहले एक क्लाइंट रह चुके हैं, हमारा डाइट फॉलो करते थे। सडनली उनका मुझे ये रिपोर्ट भेजा उन्होंने 20 अगस्त 2024 को। तो उनका HbA1c 6.0 था, जो नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज्यादा था, जिसे हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2 साल से आपका ही डाइट फॉलो कर रहा हूं और 3 महीने से मैंने शुगर नहीं खाई है। इसका मतलब क्या कि हो सकता है कि शायद ये रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपने 2 साल से आप मेरा डाइट फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको जो सिखाया था मेंटेन्ड है, आपने 3 महीने से शुगर नहीं खाई है, तो आप एक काम कीजिए, कोई दूसरे लैब से रिपोर्ट निकालिए। तो उन्होंने 2 दिन बाद ये दूसरे लैब से रिपोर्ट निकाली और उनका HbA1c 5.1 आया। आप इमेजिन कीजिए, अगर वो रिपोर्ट मुझे नहीं भेजते और कोई लोकल डॉक्टर को दिखाते जिनको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं है, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है उसका नॉलेज नहीं है, तो वो उनकी आज मेडिसिन स्टार्ट हो जाती। तो ही हैज बीन लकी इनफ एंड वी आर ऑल्सो लकी कि ऐसे हमें क्लाइंट्स मिले हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। अगला जो है पार्ट, वो है सॉल्यूशन टू टाइप 2 डायबिटीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है, जैसे मैंने बताया। मेडिसिन का रिप्लेसमेंट मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप हम मेडिसिन कम करते हैं। जैसे जैसे शुगर कम होता है वैसे वैसे मेडिसिन का डोसेज कम करते हैं। फ्रीक्वेंट हम चेक रखते हैं क्लाइंट पे, एवरी वीक फॉलोअप कॉल होता है, एंड एंड में क्लाइंट एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीने लगता है। अगली बात आते हैं थायराइड पे। जैसे हम डायबिटीज रिवर्स करते हैं वैसे ही हम थायराइड रिवर्स कर सकते हैं। थायराइड में अगेन 2 टाइप के थायराइड होते हैं, एक है हाशीमोटोस थायराइड, दूसरा है नॉर्मल थायराइड। हाशीमोटोस थायराइड ऐसा थायराइड है जिसमें वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें बॉडी के जो फाइट करने वाले जो सेल्स होते हैं वो अपने बॉडी के ग्लैंड को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं और थायराइड ग्लैंड को अटैक करते हैं। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये जो डिजीज है इसमें भी हम थायराइड को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल थायराइड है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं है, ओके, जो अपने ही ग्लैंड को बॉडी को टारगेट कर रही है, ये केस में थायराइड रिवर्स कर सकते हैं। इनके लिए भी बैलेंस डाइट है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स इन्हें नहीं खाने हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली इन्हें नहीं खाना है। इन्हें सेलेनियम की जरूरत होती है, इन्हें आयोडीन की जरूरत होती है जो आयोडाइज सॉल्ट से मिलती है। इन्हें हम एक सप्लीमेंट भी रेकमेंड करते हैं विच इज सी केल्प। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, ये हम कुछ भी नहीं बेचते हैं। हमारा एम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इस तरह से हम थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारी क्लाइंट है मिस वंदना, जिन्होंने 5 kg लूज किया और इनका थायराइड लेवल भी हमने रिवर्स किया कंप्लीटली। इनका TSH लेवल आप देख सकते हैं 10.4 है, जो हो गया 0.441 इन 3 months। आप देख सकते हैं 10.4 एंड 0.441। ओके, शी इज लिविंग अ डिजीज फ्री एंड अ मेडिसिन फ्री लाइफ। अगली हमारी क्लाइंट है मिस हरप्रीत कौर। ये कश्मीर से है, हम मुंबई से है, लेकिन हम पूरे इंडिया में हमारी सर्विस, इंडिया के बाहर हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, US, UK, दुबई, इन सब जगह पे हम हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और दुनिया के हर कोने में हम हमारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन। इन्होंने 8 kg लूज किया और इन्होंने अपना 10 साल पुराना थायराइड भी रिवर्स किया 6 महीनों में। इनका TSH लेवल है वो 9.6 से 2.6 में आ गया और आप इनका रिपोर्ट देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने आपको डायबिटीज का एक केस बताया था, वैसे ही मैं आपको एक थायराइड का केस बताना चाहता हूँ, जिसमें ये हमारी क्लाइंट है मिस शिल्पा, और इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। उससे पहले उनका TSH लेवल था 6.07, जो कि बॉर्डर लाइन पे है। और 3 महीने बाद जब हमने उनका थायराइड के सारे सिम्टम्स खत्म कर दिए, जैसे कि उनका वेट कम कर दिया, उनका जो एनर्जी लेवल्स था वो इम्प्रूव कर दिया, उनका हेयर फॉल स्टॉप कर दिया, उनका डाइजेशन इम्प्रूव कर दिया, उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ गए,
तो हमने कहा कि आप प्लीज एक रिपोर्ट निकाल लीजिए। तो जब हमने उनका रिपोर्ट निकाला तो वो 11.27 आ गया। यही केस में मैंने उनको सेम चीज गाइड की, उन्होंने मैंने उनको कहा कि अगर मैंने आपके सारे सिम्टम्स खत्म कर दिए हैं तो फिर आपके थायराइड लेवल्स बढ़ ही नहीं सकते। आप एक काम कीजिए, कोई और लैब से रिपोर्ट निकाल के क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और एक हफ्ते के बाद उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनका TSH लेवल्स अगेन 4.29 आ गया था। दैट मीन्स शी इज नॉट अ थायराइड पेशेंट एनी मोर एंड शी इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मेडिसिन एंड लिविंग अ डिजीज फ्री एंड अ मेडिसिन फ्री लाइफ विथ हाई ऑन एनर्जी। अगला है कैंसर प्रोटेक्शन। जनरली मेरे क्लाइंट्स को मैं टर्मरिक एंड करक्यूमिन लेने बोलता हूँ। टर्मरिक तो आप स्ट्रेट अवे ले सकते हैं विच इज अ हर्ब स्पाइस, राइट। लेकिन एक सप्लीमेंट आता है करक्यूमिन जो कि टर्मरिक में ही पाया जाता है, लेकिन ये प्योर सप्लीमेंट होता है और ये मैं खुद खाता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को देता हूँ एंड मेरे मेरे हर क्लाइंट्स को मैं ये सप्लीमेंट रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये एंटी कैंसर है और लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर से डेफिनेटली बचा सकता है। कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे लोगों को आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है। लेट से आपने ब्लड रिपोर्ट चेक कराया और आपको कोलेस्ट्रॉल आया, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल आया है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर आपको स्टैटिन नाम की एक दवाई देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। अभी कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो बॉडी खुद बनाती है। आपका जो ब्रेन है वो 70% फैट से बना है। तो कोई चीज जो बॉडी खुद बनाती है वो कैसे खराब हो सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने जो अपना रिसर्च किया उसमें पाया कि जो मेडिकल लॉबी जो ये ड्रग रेकमेंड करती है स्टैटिन, ये स्टैटिन से क्या हो सकता है, क्योंकि हर मेडिसिन के, जैसे कि मैंने पढ़ा है, हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूं, वो है कि आप ये पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है, सम रिसर्च हैज फाउंड दैट यूजिंग स्टैटिन्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल की गोली है, इंक्रीजेस ब्लड शुगर बिकॉज statins कैन स्टॉप योर बॉडीज इंसुलिन फ्रॉम वर्किंग वेल। इससे ज्यादा खतरनाक चीज और कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या कि आपको आया है कोलेस्ट्रॉल, आपने लिया है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और इससे आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आपके बॉडी के इंसुलिन को ठीक से काम करने नहीं देती। और उसका अगला ही सेंटेंस है, दिस कैन पुट पीपल हु यूज स्टैटिन्स एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कोई भी बात है वो प्रूफ के बिना नहीं बताता और ये बहुत ही बड़ा प्रूफ है, इसके मेरे पास आर्टिकल्स है। सो मैं ये आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। आगे आते हैं, ये कुछ ब्लड रिपोर्ट्स है जो हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगा। ये जब आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको कौन से ब्लड रिपोर्ट निकालने की जरूरत है वो हम डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे। अगला है हमारे प्रोग्राम में कौन सी डिजीजेस कवर्ड है। जैसे कि मैंने बताया, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, यूरिक एसिड, जॉइंट और बॉडी पेन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस, आर्थराइटिस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज में जब भी शुगर लेवल बढ़ता है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लगती है और हम शुगर लेवल कम करते हैं तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखने लगती है। डाइजेशन, गैस और एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हैं आपको। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, पोस्ट प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, वेट लॉस कैसे करना चाहिए, पोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो गई तो उसे कैसे रिवर्स करना चाहिए। उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो डायबिटीज होती है उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, तो उसे कैसे हमें मैनेज करना है, रिवर्स करना है। पीसीओएस या पीसीओडी की आपको प्रॉब्लम है, उसे कैसे रिवर्स करना है। अगर आपको फैटी लिवर है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसे हमें कम करना है। अगर आपको विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो हम उसे गाइड करते हैं कंप्लीटली। सो ये सब डिजीजेस कवर्ड है। अब बारी आती है आपके हेल्थ में इन्वेस्ट करने की। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा हूं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आपको जो परमानेंट वेट लॉस टेक्निक्स है वो मैं सिखा रहा हूं, आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद किसी और डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके हजारों रुपए अगर मैं बचा रहा हूं तो
आपके हिसाब से इस प्रोग्राम की कॉस्ट 3 महीने की या 6 महीने की कितनी होनी चाहिए? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नितिन से 50,000, 15,000, कितना भी पैसा दो कम है, इट इज प्राइसलेस। 10,000, 1 लाख, 1,50,000, 5 lakhs, 25,000। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपको चाहिए कि हम आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प करें, आपका हाथ पकड़ के आपको पूरी जर्नी में हम आपको लेके जाए, तो आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है 15,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, प्लस 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 ये ऑफर में आपको मिलेगा 1+1 ऑफर। इसका मतलब ये कि अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ, और अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ इसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से पैसे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और 15,000 is a very small amount for 2 people, even for 1 people. Lifetime knowledge, one-time investment, getting rid of medicines, getting rid of all the health issues, getting all the knowledge। और इसी के साथ साथ आपको मैं एक न्यूट्रिशन कोर्स है जो कि हम 3 से 4 महीने में लॉन्च करने वाले हैं, समवेयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ईयर 2025। इसका मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा 1 ईयर के लिए। ये न्यूट्रिशन का जो कोर्स है इसका ही कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपीज है, लेकिन मैं आपको फ्री में उसका एक्सेस दे दूंगा। और आज आपने जो सीखा है उससे 10 गुना आप उस कोर्स में सीखेंगे। और ये जो 15,000 का जो कोर्स है 3 मंथ्स का, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? पहले तो आपको मिलेगा डाइट प्लान जो आप कहीं भी कभी भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मिलेगा वर्कआउट प्लान विद वीडियोस। हम आपके साथ वीकली फॉलोअप कॉल्स रखेंगे, आपका प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपके लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हर एक क्लाइंट का हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उसमें डाउट सॉल्विंग होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की कुछ वीडियोस देंगे, आपको एक लिस्ट देंगे कि क्या फूड्स खाना है, क्या नहीं खाना है, बाहर क्या खाना है, ट्रैवल कर रहे हैं तभी क्या खाना है। ब्लड रिपोर्ट्स का आपका कोई इशू आया है तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। आपको क्या सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत है मैंडेटरीली वो खाना है, वो हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। शाम के नाश्ते में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है क्या खाना है, आपके किचन में क्या चेंजेस करने हैं। हम आपको एक फ्रूट्स की शीट देंगे। ये फ्रूट्स में आपको पता चलेगा कि कौन से हाई कैलोरीज फ्रूट्स है, कौन से मीडियम कैलोरीज फ्रूट्स है, कौन से लो कैलोरीज फ्रूट्स है। डायबिटीज में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, वेट लॉस में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, थायराइड में कौन से खाने चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कौन से खाने में कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। मील फोटोज चेक, आप जो खाना खा रहे हो उसका आप हमें फोटो भेज सकते हो। हर एक फोटोज को हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। रेसिपीज, काफी सारे हेल्दी रेसिपीज जो आप अपने घर पर ही बना सकते हो, उसकी हम पूरी लिस्ट देंगे आपको। फूड रिप्लेसमेंट शीट, 5 साल की मेहनत के बाद मैंने एक शीट बनाई है जिसमें मैंने लिखा है लेफ्ट साइड पे कि कौन से फूड नहीं खाने और राइट साइड पे कौन से फूड खाने चाहिए उन फूड्स के बदले। तो बैड फूड, गुड फूड का पूरा लिस्ट दूंगा मैं आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप कोई गोली खा रहे हैं तो हम उसे बंद करने में हेल्प करेंगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कोर्स करने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप आत्मनिर्भर हो जाओगे आपकी फैमिली के लिए, खुद के लिए, और आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन। आपको कोई डाउट्स है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट सारे सॉल्व करने के बाद ही आपको प्रोग्राम ज्वाइन करवाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका फैसला है। आपको इन्वेस्ट करना है आपके हेल्थ में, आपके फैमिली के हेल्थ में, आपके बच्चों के हेल्थ में, आपके पेरेंट्स के लिए और आपके खुद के फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर इज 932111284112। थैंक यू। विश यू अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस।